غزہ کے بارے میں اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا۔ اسرائیل مذاکرات سے نکل گیا، نہیں جانتا غزہ میں کیا ہوگا۔ حماس یرغمالیوں کو واپس نہیں کرنا چاہتی۔ امریکا نے غزہ امداد کے لیے $60 ملین دیے ہیں۔ امریکا غزہ میں مزید امداد بھجوائے گا۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے نیتن یاہو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایران اچھی زبان استعمال نہیں کر رہا، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی۔ حماس ہتھیار ڈال دے، یرغمالیوں کو رہا کر دے، اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکہ غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، محاصرے اور امداد بندش کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں۔ امداد فراہمی سے ہی بات چیت کی توقع ممکن ہے۔ غزہ کا محاصرہ کر کے قانون میں بدل دیا گیا۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کو فوری امداد کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ حماس سربراہ خلیل الحیہ کا ویڈیو پیغام۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے جنگ بندی نہ ہونے کو عالمی ناکامی قرار دے دیا، کہا کہ غزہ میں عارضی وقفے ناکافی ہیں، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے، غزہ میں امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیلی فوج کی ہٹ دھرمی، غزہ میں قحط کے ڈیرے۔ قابض فوج نے سمندر میں ناکے لگا دیا، انسانی امداد بند کر دی۔ فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے بحری جہاز ہنزلہ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے امدادی سامان پر قبضہ کیا، کارکنوں کو گرفتار کر کے کشتی اسرائیلی بندرگاہ پہنچا دی۔ زمینی راستوں پر بھی اسرائیلی فوج کے کڑے پہرے۔ بھوک سے بڑھتی اموات پر شدید عالمی دباؤ کے بعد غزہ میں امدادی ٹرک داخل۔ رفح کراسنگ سے متعدد ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ مصر کے راستے بھی 100 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ غزہ میں فضا سے بھی امداد پہنچانی شروع کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے پہلے مرحلے میں 25 ٹن فضا سے امداد پہنچائی۔ انسانی بنیادوں پر فراہم کی گئی امداد پر غزہ، ادویات اور پانی شامل۔ غزہ میں بھوک اور افلاس سے مزید 5 بچے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی ناکہ بندی کے دوران غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ سہونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں نہ تھم سکیں۔ ایک روز میں مزید 88 فلسطینی شہید، 374 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 59,821 تک پہنچ گئی۔ 1,44,851 افراد زخمی ہو چکے۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا۔ تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، حکومت سے جنگ بندی اور غزہ میں امداد بحالی کا مطالبہ۔ نیو یارک، لندن، نیدرلینڈ، ڈنمارک، لبنان، جرمنی، چلی، صومالیہ، یمن اور ایران میں غزہ کے حق میں مظاہرے۔ اسرائیل کا غزہ میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے فوجی حملے روکنے کا اعلان۔ المواسی، دیر البلح اور غزہ میں روزانہ صبح 10 سے شام 8 بجے تک فوجی کارروائیوں میں وقفہ ہوگا۔ اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس، سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کا اعلان۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ کانفرنس فلسطین پر ہمارے درینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطے میں امن و استحکام آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ باسل اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ غزہ بحران، فلسطینی عوام کی مشکلات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایران اعلیٰ سطح کے دورے کے تبادلے پر بھی بات چیت۔ اسحاق ڈار کا غزہ کے لیے فوری بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور، کہا امید ہے فلسطین کانفرنس مثبت نتائج کی حامل ہوگی۔ غزہ میں سنگین انسانی بحران سے لاکھوں فلسطینی متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں خوارج کی فائرنگ سے بے گناہ شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی پرامن شہریوں پر خراج کی فائرنگ کی شدید مذمت۔
दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से कुचला जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल से मुआवनत ली जाए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू सदर मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म की शांगला गली में मुलाकात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के मुहर्रकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामज़न है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले दहशत गर्दों और उनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। लीगी क़यादत की दहशत गर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ। शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म ने अमेरिका और चीन के साथ नए स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बारे आगाह किया। इंतज़ामी मामलात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात में शरीक थीं। मरियम नवाज की सलाह मुतासरीन की बहाली, इमदाद समेत जारी इमदादी कामों पर पार्टी कायद को ब्रीफिंग। ज़ायरीन के इराक और ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रमा साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। फैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा कि यह मुश्किल फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तियाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरअज़म है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल। केस की तहकीकात में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेज भी सामने आ गई। मकतूला सिदरा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू बयान जमा कराया। मकतूला सिदरा ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। सिदरा ने अदालत में मेरे बेटे से मर्जी से निकाह करने का बयान जमा कराया। मकतूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है, हम बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 रोज़ बाद मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ लड़की का कत्ल हो गया। मकतूला के ससुर की गुफ्तगू। लड़की को 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। लड़की की कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर हिदायत की। गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। कब्र तैयार होने पर लड़की की तदफीन की गई। तदफीन के लिए आए अफराद ने मिट्टी को ज़मीन से हमवार करके कब्र का निशान मिटा दिया। कब्रिस्तान के गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़री। फूल रखे फातिहा खानी की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मज़हर ने फ़ोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा कि फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान नॉर्थ माया नाज फ़ोर्स है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिनट हैं। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में इस फोर्स ने शुजायत की तारीख रकम की। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर मुजफ्फराबाद आमद। मोहसिन नकवी की शहीद के अहले खाना से मुलाकात। ताज़ियत का इजहार। मेजर रब नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म और हौसले को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर मुल्कों के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा ई इनवाइस और सैनिटेशन फ़ीस के
ई बिलिंग पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई बारे शिकायत का इजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला मानसून बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद। लिया के मुकाम पर दरिया सिंध का पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। तोनसा शरीफ के मुकाम पर भी दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। फसलें और देहात पानी में डूब गए। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। कश्मीर में गुड्डू बराज के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। हाफिजाबाद सूखेकी में 10 रोज़ बाद भी मुतअद्दिद देहात से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। ज़मीनी राब्ता बहाल न होने से मकीनों को मुश्किलात। पंजाब में आज से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDM का अलर्ट जारी। मानसून के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 272 हो गई। NDM में दरियाए सवात में डूबकर 17 अफराद की हलाकत का वाक़या। पुलिस गफलत पर इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर ताहाल अमद दरामद न हो सका। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने IG के P को खत लिख दिया। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ 60 रोज़ में कार्रवाई की सिफारिश। सवात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की इंक्वायरी की जाए। 30 दिन में कानूनों ज़वाबत में खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया के किनारे इमारतों और सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को दफ़ा 144 का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने की हिदायत की जाए। हसास मकामात पर पुलिस की नुमाया मौजूदगी और वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किया जाए। खत का मतलब आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मनसूबे की साइड ऑफिस का दौरा। तामीराती काम का जायजा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साइड ऑफिस आमद पर आला सतह का इजलास। येलो लाइन BRT से मुतालिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने येलो लाइन BRT मनसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। कहा कि येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मनसूबा है। मकसद आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत देना है। येलो लाइन शहरियों की नक्ल हरकत को बेहतर बनाएगी। मसनूई ताकत के बलबूते पर खुद को सिंह का वारिस ना समझें। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी कराची को अपनाने के लिए तैयार नहीं। मेयर कराची कहते हैं कि टाउन्स उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्या चंद गलियां और पार्क्स ही आपकी जिम्मेदारी हैं। फारूक सत्तार का तंज। कहा कि डंपर्स और कंटेनर्स लोगों को कुचल रहे हैं लेकिन आपको कोई परवाह नहीं। लियारी में इमारतें गिर रही हैं। वज़ीर बल्दियात ने मखदूस इमारतों पर एक मीटिंग नहीं की। अगर आपने ऐसा ही करना है तो हमें बता दें, आप अपना इंतज़ामी निज़ाम अलग कर लें। ग्रीन लाइन खुदा खुदा करके तकमील को पहुंची है। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा था। MQM ने वफाकी हुकूमत के सर पर सवार होकर ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल कराया। आप सिंध को क्यों तकसीम की तरफ लेकर जा रहे हैं? शरह सूद को 11 से 9% पर लाया जाए। दिसंबर तक शरह सूद को 6% किया जाए। गौर एजाज का मुतालबा इलाकाई मुल्कों के मुकाबले पाकिस्तान में शरह सूद ज़्यादा है। शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी बचत होगी। हुकूमत शरह सूद में जाने वाले पैसे को आवाम की फलाह पर लगाए। ग्रोथ नहीं हो रही। मुईशत इस वक्त ICU में है। हमने तिजारत और एक्सपोर्ट के ज़रिए आगे निकलना है। शरह सूद का तेल की कीमतों से कोई ताल्लुक़ नहीं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।